Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the course of Business Mathematics MTH 367. My name is Muhammad Imran Qureshi and I will be teaching you this course. I am Assistant Professor at the ComStats Institute of Information Technology, Islamabad. I did my PhD in Mathematics from University of Oxford, UK. So this is my brief introduction. So now we introduce some stuff about the course. So recommended books are, there is a textbook which we will be studying, which the name is Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Science by Frank S. Budnick. Its 4th edition is the recommended textbook. There is an additional reading which is Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Science by Ernst F. Hausler, Junior Richard S. Paul, 8th edition. तो आपको जो recommended book है वो है Frank S. Budnick की, जो कि Applied Mathematics for Business, Economics और Social Science पे है. Grading policy. So this is 3 credit hours course. Total marks are 100. First sessional exam will have 10 points and second sessional will have 15 points, which means that 15% of the marks. And there will be 4 quizzes which will be MCQ type, there will be 4 assignments and there will be a final exam which will have 50 points. So course objective, what is the objective of this course? So students will be able to understand business world and its associated mathematical procedures. To provide solid mathematical preparation and foundation for students continuing their studies and their careers in the areas of accounting, marketing, retailing, banking, office administration, management, finance, insurance, real estate, computer information system and general business administration. To provide an ideal learning for small business management, entrepreneurship and personal finance applications. To enable students to use linear programming tools such as graphical method, simplex method and assignment and transportation problem to cover a large area of mathematical optimization procedures. तो इस कोर्स के मकासद क्या हैं? जब भी हम कोई कोर्स पढ़ते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं. तो प्राइमरीली जो मेन एम है कि जो बिज़नेस वर्ल्ड के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और उससे एसोसिएटेड जो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे. उसके अलावा हम मैथमेटिकल फाउंडेशन और जो प्रिपरेशन चाहिए होती है आपके करियर में जब आप जाते हैं अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस और डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स में, तो उसके लिए जो आपको मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए होंगे वो इस कोर्स से आपको मिल जाएंगे. और इसके अलावा अगर आपने अपना बिज़नेस करना हो तो उसके अंदर जो स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट है और या इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग से भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो बिज़नेस के प्रॉब्लम्स हैं और उसके जो डिफरेंट टूल्स हैं उसको सीखेंगे. तो कोर्स आउटलाइन. सो वी विल स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशंस. After that, system of linear equations and its applications in business. After that, our topic will be mathematical functions and its types. After that, we will move to applications of linear, quadratic and exponential functions in finance and business. The next would be mathematics of finance. Then we will move to linear programming, and this will have graphical method, simplex method, special phenomena, dual problem will be next topic. After that, we will have transportation and assignment models, and after that we will have solutions to transportation models, assignment model and their method of solutions. And then we will move to the calculus, where we will have limits, average rate of change, differentiation, additional rules of differentiation, optimization, identification of maxima and minima, revenue, cost and profit applications, integration and techniques of integration, differential equations and its applications, definite integral and applications of integral calculus, functions of several variables, partial derivatives and its application. तो ये हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं कोर्स के हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं. तो चैप्टर वाइज कंटेंट्स बुक से क्या कौन कौन से होंगे? चैप्टर 2-3 है जो कि लीनियर इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस इन बिजनेस एंड फाइनेंस पे है. तो
Then we will have chapter 4, 5, 6, 7 which are about mathematical functions and their applications in business. And chapter number 8 is mathematics of finance, यानी finance से related जो terms हैं और उनकी mathematics किस तरह से हम study कर सकते हैं. Then the next part is about linear programming. Chapter 10 is linear programming, chapter 11 is the simplex method, and chapter 12 is transportation and assignment models. And then we will have the calculus part. We will start with chapter 15, differentiation, 16 is optimization methodology, 17 is optimization applications, and number 18 is integral calculus and introduction, number 19 is integral calculus applications, and chapter 20 will be functions of several variables, and we will also be studying its applications. So now we formally start the chapter number 2, which is our first topic of this course, and this is about the linear equations. So what are the objectives of chapter number 2? Provide a thorough understanding of the algebraic and graphical characteristics of linear equation. Provide the tools which allow one to determine the equation which represents a linear relationship. Illustrate some applications. अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. लीनियर इक्वेशंस उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो चैप्टर 2 का मकसद ये है कि पहले हम अंडरस्टैंड करें लीनियर इक्वेशन की जो अलजेब्राइक और ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो खसूसियात हैं वो हमने पढ़नी है. उसके बाद हम इक्वेशन के ज़रिए किस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने हैं या लीनियर रिलेशनशिप को मज़दरी इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्टडी करेंगे, और ब्रीफली कुछ एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे. So today's topics, आज हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं. So we start with linear equations, after that linear equations in two variables, linear equations with n variables, graphical characteristics of two variable equation, slope, formulae to find slope, determining the equation of straight line. तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से. So what is linear equation? Linear equations are first degree equations. Each variable in the equation is raised to the first power. तो linear equation जो होती है वो डिग्री 1 की इक्वेशन होती है और उसका हर एक जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है. So what is a linear equation with two variable? So a linear equations involving two variables x and y has the standard form ax plus by is equal to c, where a, b, c are constants and a and b cannot both equal 0. तो दो वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax plus by is equal to c, और यहाँ पे हमारे पास जो a, b, c हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं और a और b दोनों जो हैं वो 0 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे तो ये इक्वेशन जो है डिग्री 1 की नहीं रहेगी. ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 और सी भी 0 हो जाएगा. सो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नोट, द प्रेजेंस ऑफ टर्म हैविंग पावर अदर देन 1 और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल एक्स वाई वुड एक्सक्लूड एन इक्वेशन फ्रॉम बीइंग लीनियर. नेम ऑफ द वेरिएबल्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई. तो अगर आपके पास किसी इक्वेशन में एक टर्म है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है या उसके अंदर प्रोडक्ट टर्म है जैसे एक्स वाई है, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर नहीं होगी. और जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम दें. दे कैन बी यू वी, दे कैन बी एस टी, दे कैन बी जस्ट एनी टू नेम्स. सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर स्टडीइंग लीनियर इक्वेशंस. So now we do some examples of linear equations or also non-linear equations. So first we consider 3x plus 4y is equal to 7. तो अगर इसको हम कंपेयर करें सिस्टम ऑफ लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म से तो x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं. a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 7. And this is linear equation. तो ये आपके पास एक linear equation है. So now we take second. This is minus x plus 1 by 3y is equal to 0.
और यहाँ पे हमारे पास है वेरिएबल्स एक्स वाई, ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है 1/3 और सी की वैल्यू है 0. सो दिस इज ऑल्सो लीनियर, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है. सो द नेक्स्ट इज x अंडर द रूट इज इक्वल टू 5 + y. अब हमें यहाँ पे पता है कि x अंडर द रूट का मतलब है x की पावर 1/2. तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक टर्म की पावर जो है वो 1 नहीं है. तो इट मीन्स के यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स वाई हैं और दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन. तो हम जब लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ए बी सी की वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. सो नेक्स्ट इज -3x² + 2y इज इक्वल टू 1. हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई. नाउ हेयर देयर इज अ टर्म ऑफ डिग्री 2, x² है तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते. सो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर. So next one is x plus 3xy is equal to 9. यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट लीनियर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. सो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट इसमें आ रहा है. सो नेक्स्ट इज v + 2u इज इक्वल टू 5. अब हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं दे आर डिफरेंट. v u आर आवर वेरिएबल्स एंड a इज़ 1, b इज़ 2 एंड c इज़ 5 एंड दिस इज़ लीनियर इक्वेशन. जैसे कि हमने कहा कि वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं. इसी तरह फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव द इक्वेशन t + t/s तो हमारे इज़ इक्वल टू 9. वेरिएबल्स होंगे हमारे t और s, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक टर्म है इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो 1 और -1 हो जाएगा, डिग्री 0 है टोटल इसकी. तो दैट्स वाई वी विल हैव दिस एज ए नॉन लीनियर इक्वेशन. सो वी हैव सीन कि लीनियर इक्वेशन को और नॉन लीनियर इक्वेशन को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है. So what is the solution set of an equation? So given a linear equation ax plus by is equal to c, the solution set for the equation 2.1 is the set of all ordered pairs xy which satisfy the equation s is equal to xy ax plus by is equal to c. तो बेसिकली वो तमाम ऑर्डर पेयर जो कि इस एक्स वाई जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम कहते हैं कि सोल्यूशन है इस इक्वेशन ax plus by is equal to c का. For any linear equation s consists of an infinite number of elements. तो किसी भी linear equation के infinite number of solutions होते हैं. किसी भी linear equation जो कि 2 variables में होती है उसके infinite number of solutions होते हैं. So what is the method to find the solution? So we assume a value of one variable, substitute this into the equation and solve for the other variable. तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करते हैं, फिर उसको दूसरी जो इक्वेशन है गिवन उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. वी विल डू सम एग्जांपल्स टू सी दिस. सो एग्जांपल इज फॉर गिवन 2x + 4y इज इक्वल टू 16. ये आपकी गिवन लीनियर इक्वेशन है and you have to determine part 1 में determine the pair of values which satisfy the equation when x is equal to -2. तो आपने वो सोल्यूशन फाइंड करना है जब आपके पास x की वैल्यू -2 है. तो आपने दूसरा जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y है उसको फाइंड करना होगा. सो लेट्स कॉल दिस so you have as 2x plus 4y is equal to 16. This is equation number 1. So put x is equal to -2 in 1
you get 2 into minus 2 plus 4 into y is equal to 16. So इसका मतलब है कि -4 प्लस 4y जो है इक्वल टू 16 है. दोनों साइड पे आप 4 ऐड कर लें. 4 -4 प्लस 4y is equal to 16 plus 4. This 4 will cancel out with -4 and you get 4y is equal to 20. So now you divide both side by 4. 4y by 4 is equal to 20 by 4. तो ये आपके पास आ जाएगा y is equal to 5. Hence xy is equal to -2 over 5 is an order pair which satisfies 1. So now we find the solution of part 2. Part 2 है कि determine the pair of values which satisfy the equation when y is equal to 0. तो आपके पास equation 1 given है, so you put y is equal to 0 in equation number 1. So what we get is two x plus 4 0 is equal to 16. This implies that 2x is equal to 16. And when we divide both side by 2, we get x is equal to 8. Hence eight was 0 is an order pair which satisfies 1. So you have seen that given one value of a variable, you can find the value of the other variable which will be the corresponding value. तो आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू के लिए एक दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. So linear equation with n variables. Definition: a linear equation involving n variables x1 x2 up to xn has the general form a1 x1 plus a2 x2 plus so on up to an xn is equal to b, where a1 a2 up to an and c b are constants such that not all of a1 up to an are. तो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग n वेरिएबल्स के लिए फिर हम सिंबल जो है वो x1 अप टू xn की यूज़ करते हैं. x सबस्क्रिप्ट 1 x सबस्क्रिप्ट 2 दूसरा वेरिएबल होता है. इसी तरह nth वेरिएबल होता है वो x सबस्क्रिप्ट n होता है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 3x1 plus 5x2 minus 9x3 is equal to 0, तो इस केस में क्या है, n आपका 3 है. या फिर एक और एग्जांपल ले लें तो आपके पास -x1 plus 3x2 minus 4x3 plus 5x4 minus x5 plus 2x6 is equal to -80 and is equal to 6. So these are linear equations
with 3 and 6 variables respectively. तो एक इक्वेशन में हमने 3 वेरिएबल लिए और एक में 6 लिए. सो दिस इज़ अ जनरल फॉर्म. आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी. सो दिस इज जनरल फॉर्म. तो ये जो सिंबल है इसको हम फॉर एग्जांपल के लिए यूज करेंगे ईजी को. एंड दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल की जगह पे जस्ट हम ईजी लिखते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल थ्रू आउट दिस कोर्स कि जब भी हम ईजी लिखें इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू फॉर एग्जांपल. Next definition is about the solution set of linear equation with n variables. So the solution set of a linear equation with n variables as defined in 2.2, we call this 2.2. So this is our 2.2. Is the n tuple, यानी उसके अंदर n numbers हैं, x1 x2. जिस तरह के 2 ट्यूपल होता था 2 वेरिएबल्स में एक्स वाई, यहाँ पे n वेरिएबल्स हैं जो कि विच सेटिस्फाइज 2.2, जो कि 2.2 को सेटिस्फाई करते हैं. तो प्राइमरीली जो s होगा वो होगा हमारे पास सेट ऑफ ऑल ट्यूपल्स सच दैट a1 x1 प्लस a2 x2 plus a n x n is equal to b. यानी हमारी जो ये इक्वेशन 2.2 है इसको सेटिस्फाई करेंगे. वो तमाम n ट्यूपल ऑफ नंबर्स जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं उसको हम कहते हैं solution of that linear equation in n variables. So as in the case of 2 variables, there are infinitely many values in the solution set. तो जिस तरह 2 वेरिएबल होता थे उसमें हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास इन्फिनिट मैनी वैल्यूज होंगी सॉल्यूशन सेट के अंदर. सो नाउ वी डू एन एग्जांपल टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ सम लीनियर इक्वेशन व्हिच हैव 3 वेरिएबल्स. सो गिवन एन इक्वेशन फॉर x1 minus 2x2 plus 6x3 is equal to 0, what values satisfy the equation when x1 is equal to 2 and x3 is equal to 1. तो इट मीन्स कि हमारे पास एक 3 नंबर आएंगे जो कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे. 2 हमें गिवन है और एक हमने इन 2 को यूज करते हुए फाइंड करना है. सो इन सॉल्यूशन, सो एज फॉर x1 minus 2x2 plus 6x3 is equal to 0, let's call it equation number 1. So you put x1 is equal to 2 and x3 is equal to 1. In 1 we have 4 into 2 minus 2 into x2 plus 6 into 1 is equal to 0. तो ये हमारे पास आएगा 8 minus 2x2 plus 6 is equal to 0. तो ये आपके पास आ जाएगा 14 minus 2x2 is equal to 0. और आप 2x2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा 14 is equal to 2x2. या फिर दोनों साइड पे 2x2 को सम कर लें तो ये लेफ्ट साइड पे कैंसिल होकर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. तो आप दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आएगा x2 is equal to 14 by 2 which is 7. Hence x1 to x3 is equal to 271 satisfies 1. So this is the solution of the given linear equation. और हमें 2 वैल्यूज़ गिवन थी x1 और x3 की, तो इसके अलावा हम कोई भी 2 वैल्यूज़ लें तो हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यूज़ लें तो डिफरेंट सोल्यूशन आएगा. सो दैट्स वाई इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. ग्राफिंग 2 वेरिएबल इक्वेशंस.
अब हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन है और हम देखेंगे कि उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं. A linear equation involving two variables graphs as a straight line in two dimension. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों तो उसको हम एज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन टू डायमेंशन, यानी जो हमारा एक्स वाई प्लेन का ग्राफ होगा उस पर हम उसको एज ए स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द मेथड? Set one variable equal to 0, solve for the value of other variable. Set second variable equal to 0, solve for the value of first variable. The order pairs 0y and x0 lie on the line. तो आपका जो ऑर्डर पेयर है 0y और x0 वो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. So what you will do, you will just connect and extend the line. So connect them, यानी जो आपके पास दो आए हैं इसको आपने कनेक्ट करना है and then just extend the straight line in both directions. यूज़ एरोहेड. आपने इसको कनेक्ट करके इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है दोनों डायरेक्शंस में. इन दो ऑर्डर पेयर्स को आप कनेक्ट करेंगे और लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेंगे. सो नाउ वी डू फर्स्ट एग्जांपल. सो नाउ वी स्टार्ट द एग्जांपल्स. सो first example is graph the linear equation for x plus 8y is equal to 16. Solution. So first put x is equal to 0. So we will follow the method. एक वेरिएबल को हमने सबसे पहले 0 पुट करना है, तो हमने पहले x वेरिएबल को 0 पुट कर रहे हैं in 1. So we call this equation number 1. So we get 4 times 0 plus 8 times y is equal to 16. तो ये आपके पास आएगा 8y 0 plus 8y is equal to 16. Divide both side by 8, you get y is equal to 2. So now you put x के बजाय y को 0 पुट करें in 1. You get 4 into 0 plus 4 into x plus 8 into 0, 16. So you get 4x plus 0 is equal to 16. So you divide both side by 4, which gives you x is equal to 4. So it means that, and we get zero 2 and for 0. Now we draw the line. So now so this is our x-axis and this is y-axis. तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1, there will be 2, there will be 3 and there is 4. So there is, here we will have 1 and here we will have 2. This is our one of the points which is 4 0. ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है लाइन के ऊपर जो कि 0 2 है. So let's connect them. हम इसको कनेक्ट कर लेंगे. once we connect them we just extend the line in both directions. तो इस लाइन को हम दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर लेंगे. So this is the equation of straight line. तो ये
तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ होगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन, जो कि इस वक्त आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज अ रफ ग्राफ. इफ यू ड्रॉ इट विद द स्केल यू विल सी दैट इट इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन. तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं. सो वेयर द इक्वेशन इज गिवन बाय 4x minus 7y is equal to 0. So let's call this equation number 2. So we put x is equal to 0. We get 4 times 0 minus 7y is equal to 0, which gives us minus 7y is 0, और 7 से डिवाइड करेंगे तो minus 7 से तो y is 0. And when you put y is 0, we get 4x minus 7y is equal to, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 4x is 0, which is give x is 0. तो इस केस में आपके पास एक ही पॉइंट आया है. सो जब ये केस हो जब जिसमें आपके पास वही पॉइंट फिर आ जाए तो फिर आप कोई और पॉइंट पुट करके अगला पॉइंट फाइंड करेंगे लाइन पे. तो आपने बेसिकली 2 डिफरेंट पॉइंट फाइंड कर लिए हैं लाइन के ऊपर. उसके बाद आप इन लाइन्स को ज्वाइन कर सकते हैं. तो हमने देखा कि इस केस में जो हमारे पास पॉइंट आ रहे थे वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि 0 पुट करने से जो पॉइंट आ रहा है वो इतना हेल्पफुल नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट समथिंग एल्स. सो इन बोथ केसेस 0 0 is obtained. So in order to find second point, take y is equal to 4. So what we get is 4x minus 7 into 4 is equal to 0. So it means that 4x minus 28 is 0. So it means कि 4x is equal to 28 and x is equal to 7. It means that so xy is equal to 7 or 4 is a point on the line. So now we can draw the graph. So now we can draw the graph of this line. क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये so one of the point is the origin, which is 0 0. लाइन के ऊपर एक जो पॉइंट था वो 0 0 था, and the second point is 7 or 4. So at x-axis we need to move 7 units. 3 4 5 6 7, and y-axis पे हमने मूव करना है 4 units. So this is the point roughly 11 or 4. So you connect these 2 points and then you extend the line in both directions. तो इस तरह से हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है. So what are the intercepts? So there are 2 intercepts. X-intercept. The x-intercept of an equation is the point where the graph of the equation crosses the x-axis. That is when y is equal to 0. तो किसी भी इक्वेशन का जो एक्स इंटरसेप्ट होता है ये वो जगह होती है जहाँ से ग्राफ एक्स एक्सिस क्रॉस करता है. इट मीन्स के
जब ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वाई 0 होता है। फॉर एग्जांपल इन दिस ग्राफ हम देख रहे हैं कि जब पॉइंट 40 जो है यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को पास कर रहा है तो हमारा ये जो पॉइंट है ये एक्स इंटरसेप्ट है। And y-intercept, the y-intercept of an equation is a point where the graph of the equation crosses the y-axis, that is when x is equal to 0. तो y-intercept वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ जो है लाइन का वो y-axis को क्रॉस करता है जहाँ पे x 0 होता है। So this symbol basically means that is. तो in mathematics frequently that is की जगह पे ये symbol यूज़ की जाती है। So you have to be careful when we use this symbol. It means that we are referring to that is. So equations of the form x is equal to k has no y-intercept. यानी अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी हो जो कि x is equal to k टाइप है या y is equal to k के कांस्टेंट है इस टाइप की हो तो इसका कोई भी x is equal to k का कोई y इंटरसेप्ट नहीं होता और y is equal to k का कोई x इंटरसेप्ट नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इक्वेशन है which is something like that, तो आपके पास ये होगा उसका x इंटरसेप्ट और ये पॉइंट होगा y इंटरसेप्ट। और इफ़ यू सीक दैट x इज इक्वल टू k की जो इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे k यूनिट है तो ये जो लाइन है ये आपके पास x इज इक्वल टू k लाइन है। तो देख रहे हैं कि y एक्सिस को जो है टच नहीं करती है ये लाइन, सो इसका कोई y इंटरसेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसी लाइन हो, ये k यूनिट्स है तो ये जो लाइन है इसको y इज इक्वल टू k लाइन कहते हैं, k यूनिट्स। तो ये x एक्सिस को टच नहीं करती है तो इट मीन इसका कोई x इंटरसेप्ट नहीं है। तो x इज इक्वल टू k आपकी एक वर्टिकल लाइन होती है और y इज इक्वल टू k एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सो व्हाट इज द स्लोप? Any straight line with the exception of vertical lines can be characterized by its slope. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो वहाँ सिवाय वर्टिकल लाइन के उसको हम इसके स्लोप के ज़रिए करेक्टराइज कर सकते हैं। Slope represents the inclination of a line or equivalently shows the rate at which the line rises and fall or how steep the line is. तो स्लोप जो है वो लाइन की इंक्लिनेशन को जाहिर करता है, यानी जिसका मतलब है कि कितनी तेज़ी से लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है या फिर कितनी जो है उसके अंदर स्टीपनेस है। सो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लोप। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह की you are in xy plane and you have a line जो कि x की वैल्यू के साथ साथ बढ़ती है। जैसे x की वैल्यू बढ़ती है तो लाइन की जो y की वैल्यू है वो भी साथ बढ़ती है, तो कुछ इस तरह की लाइन होगी। तो ऐसी लाइन का जो स्लोप है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। सो दिस इज a and it is a positive slope। इस सूरत में हमारा स्लोप है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। और इस सूरत में हम लिख सकते हैं कि x increases and y also increases, यानी x के बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इस सूरत में हमारा स्लोप पॉजिटिव है। सो नाउ वी मूव टू द सेकंड सिचुएशन। यहाँ पे हमारे x एक्स है, y अकॉर्डिंग x और y, और आपके पास कुछ इस तरह से लाइन बनती है। सो x increases, rather we shall say as x increases y decreases।
यानी x बढ़ता है और y कम हो रहा है, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। सो दिस इज नेगेटिव स्लोप, so we call it P. So there is a third case. When you have this sort of line, this is the line y is equal to k टाइप की है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि as x increases or decreases, y remains constant. चाहे x की वैल्यू बढ़े या कम हो, आपके पास जो y है वो कांस्टेंट रहता है, यानी y इज इक्वल टू k या y इज इक्वल टू c या कुछ भी, यहाँ पे आपके k है। तो इसकी सूरत में हम कहते हैं कि जीरो स्लोप। सो दिस इज c एंड d इज अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, x आपके पास यहाँ पे k है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि x इज कांस्टेंट regardless of value of y. Regardless of value of y. So this is slope undefined. तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है। This is situation D. So all in all, the slope of a line may be positive, negative, zero or undefined. So the line with slope positive rises from left to right. तो पहले जो हमारा एक केस है, लेफ्ट टू राइट हमारी लाइन जो है वो रेस कर रही है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप नेगेटिव फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर नेगेटिव है तो हमारी जो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट फॉल कर रही है। ज़ीरो व्हेन वी हैव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारी जब हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो ये ज़ीरो है, और व्हेन वी हैव अ वर्टिकल लाइन इट इज़ अनडिफाइंड। दिस इज बेसिकली द ब्रीफ समरी ऑफ दिस ग्राफिक्स। So the sign of the slope represents whether the line is falling or rising. हमने देखा कि जब पॉजिटिव था तो लाइन जो थी वो रेस कर रही थी, और जब नेगेटिव था तो लाइन जो है वो फॉल कर रही थी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड indicates the relative steepness of the line. और इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो द नेक्स्ट इज 2-point फार्मूला। स्लोप फाइंड किस तरह से करते हैं? The slope tells us the rate at which the value of y changes relative to changes in the value of x. तो स्लोप हमें बताता है कि y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x कैसे चेंज होती है, यानी जैसे x चेंज होता है तो y कैसे चेंज हो रहा है। So given any 2 points which lie on a non-vertical straight line, the slope can be computed as the ratio of the change in the value of y to the change in the value of x. तो स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एज ए चेंज एज ए रेशो, जो कि वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ x में जो चेंज है उसकी रेशो फाइंड करके।
So slope is change in y divided by change in x, and we can write it as delta y or delta x. Delta y is a change in the value of y, and delta x is change in the value of x. So that's basically what is the slope. So what is the 2-point formula? So mathematically क्या है? The slope m of a straight line connecting two points x1 y1 and x2 y2 is given by the formula slope is equal to m is equal to delta y over delta x, और हमने delta y is the change in y which is y2 minus y1, and delta x is the change in x which is x2 minus x1. So if you are given 2 points, you can find the on the line you can find the slope of the line. अगर आपके पास एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप उसका स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं by using this formula which is called the 2-point formula. Example is compute the slope of the line segment connecting the 2 points minus 2 with 3. हमने उस लाइन की स्लोप फाइंड करना है जो कि ये 2 पॉइंट्स -2, 3 और 1 माइनस 9 को कनेक्ट कर रही है. सो वी हैव x1 y1 is equal to -2 with 3 and x2 y2 is equal to 1 minus 9. So slope which we represent by m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 is minus 9 minus y1 is 3 divided by x2. x2 is 1 and minus 2. ये आ जाएगा आपके पास minus 12 divided by 3 which is minus 4. So the slope is negative. तो ये जो लाइन है तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से होगी roughly. It's a rough figure क्योंकि स्लोप नेगेटिव है. So the important note is that along any straight line the slope is constant. किसी भी straight line के along जो slope होता है वो हमेशा constant होता है, यानी throughout the line slope कभी change नहीं होगा. The line connecting any two points will have the same slope. तो यानी कोई एक the line connecting any two points will have the same slope, यानी दो points को connect करने वाली कोई भी जो line होगी उसका slope जो होगा वो throughout same रहेगा. So the next is the slope intercept form. यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है उसकी एक दूसरी फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसकी मदद से भी हम स्लोप को फाइंड कर सकते हैं. सो गिवन दिस इक्वेशन ax plus by is equal to c, we can write it as by is equal to c minus ax, and when you divide both sides by b you get y is equal to c by b minus a by bx, or you can write this as y is equal to mx plus k, where m is equal to minus a by b is equal to the slope, or k is equal to c by b which is y intercept. क्योंकि अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू है ये कॉरेस्पॉन्डिंग उस लाइन का k इंटरसेप्ट आ जाएगा. सो y is equal to mx plus k is, so this is slope intercept form. So the above equation is called the slope intercept form. यानी ये जो equation आपके पास है इसको कहते हैं slope intercept form, and generally it is written as y is equal to mx plus c, या इसको आप mx plus k कुछ भी लिख सकते हैं, and generally इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं which is y is equal to mx plus k, where m is slope and k is y intercept. So the example is to rewrite the equation minus x
plus 2y divided by 4 is equal to 3x minus y, and find the slope and y-intercept. Solution. So you are given minus x plus 2y divided by 4 is equal to 3x minus y. तो दोनों साइड को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 12x माइनस 4y, एंड देन x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं और y वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12x प्लस x, and this will give you 6y is equal to 13x, and when you divide both side by 6 you get y is equal to 13 by 6x plus 0. So here slope m is 13 by 6 and y-intercept is 0. Which is k is 0. तो नेक्स्ट इज डिटरमिनिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. सो वन इज स्लोप एंड इंटरसेप्ट. अगर आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं. Slope and intercept. This is the easiest situation to find an equation of line if slope of a line is minus 5 and y-intercept is 0 over 15, then we have m is equal to minus 5 and k is equal to 15. यानी अगर आपके पास स्लोप और y-intercept गिवन है तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है वो माइनस 5 है और जो y इंटरसेप्ट k है वो 15 है, तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं एज y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 15, और वी कैन राइट दिस एज 5x को लेफ्ट पे ले जाएं, माइनस 5x को तो प्लस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 15. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. So next is, if you are given a slope and one point, then how you can find the equation of straight line. So if we are given the slope of a line and some point that lies on the line, we can substitute the known slope m and coordinates of the given point into y is equal to mx plus k and solve for k. So for example, अगर आपको if slope of a required line is minus 2 and the point 2 over 8 lies on the line, then y is equal to mx plus k gives us y is equal to, यहाँ पे 8 होगा, m आपके पास माइनस 2 है और x की वैल्यू भी 2 है, तो हम k फाइंड कर सकते हैं. सो this implies that k is equal to 12. So using slope intercept form, अब हमारे पास स्लोप भी है और y इंटरसेप्ट भी है, तो हम लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 12 इज द आंसर और रिक्वायर्ड लाइन. So given a non-vertical straight line with slope m and containing the point x1, y1, the slope of the line connecting x1, y1 with any other point xy is given by m is equal to y minus y1 divided by x minus x1. तो हम बेसिकली जो 2 पॉइंट फार्मूला है उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक किसी लाइन पे पॉइंट गिवन है तो
उसका स्लोप हम अब फाइंड कर सकते हैं, जनरल फार्मूला उसका फाइंड हम कर सकते हैं, क्योंकि जो किसी भी दो पॉइंट को जब कनेक्ट करते हैं तो उसका स्लोप हमें पता है कि क्या होता है, वो होता है y1 माइनस y-1 और डिवाइडेड बाई x माइनस x1। सो अगर आपके पास एक पॉइंट xy हो और एक पॉइंट x1 y1 हो तो आप उन दोनों को कनेक्ट करें तो उससे आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी जो कि डेल्टा y और डेल्टा x है, जो कि इस केस में y माइनस y1 और x माइनस x1 है। तो बेसिकली इसको अगर आप रीअरेंज करके लिख लें तो आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो हम जो ऊपर वाली एग्जांपल है उसको फिर करते हैं अब इस फार्मूले से। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू -2 and passing through the point 2, 8. Solution. So you are given m is equal to -2 and x1 y1 भी आपको given है जो कि 2 व 8 है। So using y minus y1 is equal to m times x minus x1 gives you y minus 8 is equal to -2 times x minus 2। तो ये आपके पास आ जाएगा y minus 8 minus 2x plus 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x plus y is equal to 12, which is just the same line as we found in the last example। तो ये बेसिकली वही लाइन है जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में फाइंड की थी, और रिक्वायर्ड लाइन। अगर आपके पास स्लोप पॉइंट गिवन हो तो आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास जस्ट एक पॉइंट भी गिवन हो तो तब भी आप उससे आपके पास स्लोप भी आ सकता है, और अगर आपके पास स्लोप गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। So what are parallel and perpendicular lines? So two lines are parallel if they have the same slope। तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं अगर उनका स्लोप सेम हो, यानी दोनों लाइंस का जो स्लोप है, एक लाइन का स्लोप m1 है दूसरी का m2 है, तो हम कह सकते हैं कि m1 is equal to m2। So two lines are perpendicular if their slopes are equal to the negative reciprocal of each other। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी अगर उनके जो स्लोप्स हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हों। यानी मैथमेटिकली इफ यू हैव m1 into m2 then it will be -1, or you can say m1 is -1 over m2, or m2 is -1 over m1। so this is parallel and perpendicular lines की करेक्टराइजेशन भी स्लोप के जरिए हो जाती है। so example is find an equation of line through the point 2 or -4 and parallel to the line 8x minus 4y is equal to 20। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि पॉइंट 2 और -4 के थ्रू है, और पैरेलल है लाइन 8x minus 4y is equal to 20 के। सो गिवन द लाइन 8x minus 4y is equal to 20, we can write it as -4y is equal to -8x plus 20 and y is equal to 2x minus 5। so let m1 is slope of the given line। तो गिवन लाइन का स्लोप को हम m1 कहते हैं, तो ये होगा आपके पास जो कि 2 है, इक्वेशन से एविडेंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, और ये भी हमें पता है कि रिक्वायर्ड लाइन जो है पैरेलल है इस लाइन के, एज द required line is parallel to the given line given above line। तो इट मीन्स कि रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप जो है वो 2 होगा।
so the slope of the required line is also 2. So the slope of the required line is 2, that is m2 को भी हम 2 ले लेते हैं. So आपके पास passing through the point 2 and -4 है as the required line passes through 2 -4 and having slope 2, we use y minus y1 is equal to m times x minus x1 to find the equation of line. So you have y1 is equal to -4, so y minus -4 and 2 times, which is your slope, x is 2, so you get y plus 4 is equal to 2x minus 4. So this gives you 2x minus y is equal to 8. So this is the आंसर. तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका स्लोप गिवन लाइन के बराबर था और इक्वल टू 2 था, और ये लाइन जो थी वो 0.2 और -4 से पास कर रही थी. So that's how we find the equation of line if you are given some information about the slope and one point which is passing through that line and one point which is lying on this given line and which और जिससे लाइन पास कर रही हो. So linear equations involving more than 2 variables. अगर आपके पास linear equation हो कोई 2 वेरिएबल से ज़्यादा तो जाहिर है वो एक हायर डायमेंशन में होगी. तो ये आपके पास फिगर है जो कि 3 डायमेंशनल फिगर को जाहिर कर रही है कि 3 डायमेंशनल स्पेस किस तरह से होती है या ग्राफ किस तरह से होता है. सो इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो पॉइंट होता है उसको हम we have x1 y1 x1 x2 x3 as point. 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमारा पॉइंट जो होता है वो 3 नंबर से प्रेजेंट होता है और 2 डायमेंशनल में 2 नंबर से x y. So 3 coordinate axes which are perpendicular one another intersecting at their respective 0 point called the origin. तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं ये तीनों हम एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसको हम ओरिजिन कहते हैं. सो दिस इज़ द ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0 और दिस कैन आल्सो बी सीन इन दिस फिगर. सो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 is equal to b. And the solution set of linear equations are all order tuples x1 x2 x3 which satisfies the above equation. यानी ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और तमाम ऑर्डर टुपल्स 3 डायमेंशनल केस में. तो किसी पॉइंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड में, तो हम एक्स एक्सेस के अलोंग एक्स यूनिट्स चलेंगे, वाई एक्सेस के अलोंग हम y यूनिट्स चलेंगे और z एक्सिस के अलोंग हम z यूनिट चलेंगे. तो ये हमारे पास एक पॉइंट प्रेजेंट हो जाएगा. जिस तरह के x y में हम x एक्सिस के अलोंग x यूनिट चलते हैं और y एक्सिस के अलोंग y यूनिट्स चलते हैं. ड्राइंग फिगर्स इज रादर हार्ड इन 3 डायमेंशनल एंड इट इज़ वेरी इजी इन 2 डायमेंशनल केस. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पॉइंट है 2 3 5 तो x एक्सिस पे आप 2 यूनिट्स चले हैं, y पे आप 3 यूनिट्स चले हैं और z पे आप 5 यूनिट्स चले हैं. सो यू हैव ड्रॉन दिस पॉइंट 2 3 5. So this was just really a glimpse and hint at the 3-dimensional system. So this is all about the today's lecture. So in summary, we started with the definition of linear equations. उसके बाद हमने linear equations in 2 variables पढ़ा. उसके बाद हमने linear equations with n variables को पढ़ा. Then we moved to the graphical characteristics of 2 variable equations. यानी ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन का. उसके बाद हमने स्लोप पढ़ा और फॉर्मूले टू फाइंड स्लोप पढ़ा. तो हमने
स्लोप और इसके फार्मूले पढ़े। दो फार्मूले थे, एक में 2 पॉइंट्स यूज़ होते थे और एक के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन की यूज़ होती थी। और उसके बाद हमने डिटर्मिनिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ा कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद हम उनके सॉल्यूशन सेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल एनालिसिस उसका करेंगे, then we will move to the elimination procedure, and the next would be the system of more than 2 equations with 2 variables only, and at the end we will briefly introduce the Gaussian elimination method. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।